Hello, good evening, friends. Today we are going to study some new topics which are related from the dissolution of the partnership accounting. As we are knowing, we are studying the dissolution of partnership account. Okay, so in the last two lectures already we have seen the basic concept of dissolution and preparation of realization account. Today we'll discuss the all remaining topics or all remaining concept of the dissolution of partnership accounting. Getting you all? So if you want to understand, so please see and focus on it. First of all, we will study what the adjustment related from workman compensation fund. Okay, if in the balance sheet the workman compensation fund is given, then what we will do, what treatment we will do. So accounting treatment which are related from the workman compensation fund. Okay, so there are some conditions. By these conditions we will try to understand what accounting treatment will be done under the treatment of workman compensation fund. Getting over? So see here, first condition, workman compensation fund in the balance sheet is given. Suppose in the balance sheet is given what, 1 lakh. Okay, so in the first condition, if there is no any claim, then what we will do, all amount of workman compensation fund we will distribute to the partners capital account. Getting you all? So entry will be workman compensation fund account debit to partners capital account, in old profit sharing ratio. Whatever ratio they distribute their profit, we will distribute the profit. Amount of workman compensation fund. Getting all? If there is no any claim. Okay. Second condition, if the amount of claim is less than, क्या मैंने बोला, less than amount of workman compensation fund, मतलब whatever balance is given in the balance sheet and the amount of claim is rupees, suppose 50,000 in the adjustment is given. So what we will do, see here, workman compensation fund account debit to realization to partners capital account. From the amount, workman compensation fund will be debit from 1 lakh to realization. This claim will be settled under realization account and less the 50,000 amount will be distributed in old ratio of the partners. Getting? So this is the second condition. Third condition, if the amount of claim is equal to amount of workman compensation fund, मतलब ये दोनों जब इक्वल रहेंगे, अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड अमाउंट ऑफ क्लेम, सपोज द अमाउंट ऑफ क्लेम इज रुपीज 1 lakh, both are equal, then what we will do,
all the amount of workman compensation fund will be transferred to where? Realization account. So entry will be workman compensation fund account debit to realization account from the amount 1 lakh 1 lakh. Okay, I have given the amount for getting you. Okay, point condition number 4. If the amount of claim is more, if the amount of claim is more than amount of workman compensation fund, means whatever amount of workman compensation fund, the balance of workman compensation fund is given, if the amount of claim is more than, suppose amount of claim is 1,20,000, then what we will do? So all the amount we will transfer to where? Realization account. Entry will be done workman compensation fund account debit to realization account. What? 1 lakh 1 lakh. And second entry, realization account debit to cash oblique bank. The claim is 1,20,000. 1,20,000 से we will pass the journal entry. Realization account debit to cash bank. Realization debit to cash C oblique B I have written. Okay. So this is the all conditions which are related from the accounting treatment of the workman compensation fund. So you will do if the any condition comes in your exam, so you can solve through this. Okay, so this is the first topic for today. Second, see here, and I am going to delete this. Okay, second topic. Second topic is amount of goodwill, accounting treatment of amount of goodwill. Balance sheet and goodwill amount is given 1 lakh. So what we will do? First of all, if the amount of goodwill is given, if the amount of goodwill is given in the balance sheet, we will transfer to the realization account directly by the book value. So entry will be realization account debit to goodwill from the book value. Clear? And if anything or any cash is realizing from the goodwill after sell out to the goodwill, so what entry will be done? Cash debit to realization. Okay, first entry, second entry, whatever money we will receive. Okay, some students has asked to me, sir, please treatment the amount of goodwill. कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि अमाउंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट बता दीजिए. तो देख लीजिए, अमाउंट ऑफ गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट इज रुपीज 1 lakh. ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पूरे अमाउंट से हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे हम सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं. उसके बाद इफ कोई भी पैसा रियलाइज होता है गुडविल से, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड, इफ एनी पार्टनर take the गुडविल, क्या लेता है? कोई पार्टनर ले लेता है, तो क्या होगा? खरीद लेता है. तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? सो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर? देख लीजिए, पहले एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू गुडविल. सेकंड, अगर पैसा रियलाइज होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक
debit to realization, and third, if any partner take the amount of goodwill, then partner's capital account debit to realization. Okay, second topic finished. Third, preparing of partners loan account. क्या मैंने बताया? Preparing of partners loan account. Preparing of partners loan अकाउंट. ठीक है ना? कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम डिसोल्यूशन? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा कैश बैंक. तो पार्टनर्स लोन क्या करेंगे? सिंपल एक एंट्री बनेगी. क्या इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो भी पार्टनर का लोन होगा उसको हम आउटसाइड डेब्ट्स नहीं मानते, उसके हम फर्म के इनसाइड का डेब्ट्स मानते हैं, इनसाइडर डेब्ट्स. ओके, सो इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में इसको हम नहीं दिखाते हैं, इसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए क्या है एंट्री, क्या बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक. कई बार मैं C ऑब्लिक B लिख देता हूं, तो मतलब कैश ऑब्लिक बैंक, इसको समझिएगा. ठीक है ना? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लोन अकाउंट कैसे बनेगा देख लीजिए. जो भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा क्या? बाई बैलेंस DD. कितना? जो भी लोन होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन है, अगर हम पेमेंट करेंगे टू कैश बैंक हो जाएगा 1 लाख. कहानी खत्म. एक लाइन का ये अकाउंट है. क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा. अकाउंट नंबर 2 फिनिश. रियलाइजेशन अकाउंट फिनिश. सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट इज फिनिश. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यू आर नोइंग हाउ वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल कुछ भी नया नहीं है. ठीक है ना? अब देख लीजिए, सारा बैलेंस अमाउंट क्रेडिट कर देंगे. ऑल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. ठीक है ना? क्रेडिट कर देंगे और यहां जो डेबिट होगा वो डेबिट कर देंगे. अब दो बातें होती हैं यहां पे. इफ एनी कैश इज रिक्वायर्ड फॉर द पेइंग द लायबिलिटीज, अगर फर्दर कैश का जरूरत होता है तो कौन भरेगा? हम भरेंगे? नहीं, जो बिजनेस करेगा वो भरेगा, जो पार्टनर है वो भरेगा. क्लियर? अच्छा, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी पार्टनर्स होंगे, इफ दे विल इंट्रोड्यूस further cash for paying the deficiency or paying the liabilities of the partnership firm, तो क्या होगा? एंट्री बनेगी. कौन सी एंट्री बनेगी बता दीजिए जरा हमको. कैश ऑब्लिक बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, बाय कैश बैंक हो जाएगा. अच्छा, इफ वी अगर सफिशिएंट पैसा है फर्म के पास एंड फर्म इज पेइंग सफिशिएंट मनी टू ऑल द पार्टनर्स, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. क्लियर? यहां पैसा लाएंगे, यहां पैसा पाएंगे. क्लियर है? तो इस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना देंगे. तो इसकी पोस्टिंग हम अकाउंट में कर देंगे. ऑल प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बैलेंस ऑफ कैपिटल. ठीक है, सारी अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे. और इफ एनी लायबिलिटी इज गिवन देन वी विल डेबिट. ओके, एंड इफ एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर द पेइंग ऑफ द डेफिशिएंसी वी विल take the cash from the partner cash bank debit to partner's capital account if the partner will introduce the new amount of capital, and if there is no need of money then हम क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे. एंट्री बनेगी partner's capital account debit to cash bank. कहानी खत्म. तीसरा अकाउंट भी खत्म हो गया. चौथा, फोर्थ
अब बनाएंगे हम क्या, कैश और बैंक अकाउंट। कोई भी अकाउंट, जो अकाउंट हम फॉलो कर रहे हैं वही अकाउंट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या करेंगे हम, जितना भी बैलेंस होगा, या कैश का बैलेंस होगा या बैंक का बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना, जो बैलेंस होगा हम यहां लिख लेंगे। ओके, अच्छा, जहां से भी हमको पैसा आएगा, फ्रॉम विच थिंग्स we will get cash, okay, from where we will get cash, we will receive cash, okay, so we will show this side। कहां दिखाएंगे, इस साइड दिखाएंगे, यानी क्या मैंने बताया था, इनकमिंग। ध्यान रखिएगा, जो भी पैसा आएगा वो यहां दिखा देंगे, ठीक। और वट एवर अमाउंट वी विल पे, जो भी हम पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, चाहे क्रेडिटर को हुआ, चाहे पार्टनर्स को हुआ, चाहे पार्टनर्स का लोन हुआ, कुछ भी होगा हम यहां दिखाएंगे पेमेंट, ठीक है ना, यहां दिखाएंगे, फिर उसका टोटल लगा देंगे। और ये टोटल क्या होगा, इक्वल आएगा, दोनों साइड का मैच करना चाहिए, जितना कैश आया उतना कैश जाना चाहिए, ओके। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही निकल जाएगा जब ये दोनों मैच कर जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? तो सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पैसा ध्यान में, कैश बुक बनाते थे ना आप लोग, ठीक एज इट इज कैश बुक की तरीके से है, कैश अकाउंट के तरीके से, ठीक है ना, आप लोग को इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, क्या, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ध्यान रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज द नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है ना। क्या है, लोन है, याद है डेफिनेशन क्लास 11th वाली, तो उसको याद कर लीजिएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश, क्लियर। सो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा, उसको रियलाइजेशन में हम नहीं डालेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लायबिलिटी में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। इफ बैंक लोन इज गिवन, तो उसको हम कहां दिखाएंगे, रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। ये दोनों पॉइंट अलग अलग है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आएगा, कैश बैंक में आएगा, बैंक लोन कहां आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इस चीज को देखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, अब इसके बाद कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। रही बात प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो वो आपको इस साल पढ़ना नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स आप वीडियोस देखिए रेगुलर बेसिस पे और सारे क्वेश्चंस लगाइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स, ओके। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। आपको होप अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे होंगे। फॉर नेक्स्ट वीडियोस वी विल स्टार्ट कंपनी अकाउंट्स वॉल्यूम 2 सेकेंड बुक, ठीक है ना। फर्स्ट बुक इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए वीडियोस को, ठीक है। और फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।